حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کہیں نبی فرماتے ہیں حسین دنیا کا پھول ہے، آپ اندازہ لگائیے، نبی نے فرمایا میرا حسین دنیا کا پھول ہے۔ پھول کی فطرت ہوتی ہے، پھول کھلنے کے بعد مرجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے خرم نگر میں آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ و مولانا ثاقب رضا صاحب قبلہ اگر کوئی بھی پیڑ پھول کا لگائیں گے، اگر اس پیڑ میں پھول کھلے گا، صبح کو کھلے گا، شام کو مرجھا جائے گا۔ اگر اس پیڑ میں شام کو پھول کھلے گا تو صبح کو مرجھا جائے گا۔ عاشق نگر والے، اگر تم اپنے گھر میں کوئی بھی پیڑ لگاؤ گے، اگر اس کے اندر پھول آئے گا، صبح کو پھول کھلے گا، شام کو وہ پھول مرجھا جائے گا۔ اگر شام کو کھلے گا تو صبح کو مرجھا جائے گا۔ ہندوستان کی کسی بھی زمین کو آپ لے لیجئے، زمین کے جس حصے پر اگر پھول صبح کو کھلے گا تو شام کو مرجھا جائے گا، شام کو کھلے گا، صبح کو مرجھا جائے گا۔ کشمیر کی وادی میں اگر پھول صبح کھلے گا، شام کو مرجھا جائے گا، شام کو کھلے گا، صبح کو مرجھا جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا حسین دنیا کا پھول ہے، پھول کی فطرت ہے، پھول کھلنے کے بعد مرجھا جاتا ہے۔ لیکن آقا حسین کیسے پھول ہے جو مرجھائیں گے نہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے امتیوں سنو، میرا نواسا حسین ایسا پھول ہے جو کھلنے کے بعد مرجھائے گا نہیں۔ 3 دن کا میدان کربلا میں بھوکا ہوگا، مرجھائے گا نہیں۔ 3 دن کا پیاسا ہوگا، مرجھائے گا نہیں۔ عباس نمبردار کے بازو قلم کیے جائیں گے، مرجھائے گا نہیں۔ قاسم کی جوانی لٹے گی، میرا حسین مرجھائے گا نہیں۔ علی اصغر کی حلق میں تیر پہ بست ہوگا، حسین مرجھائے گا نہیں۔ نبی فرماتے ہیں میرا حسین ایسا پھول ہے جو کھلنے کے بعد مرجھائے گا نہیں۔ اسی لیے عاشق صادق نے کہا ہے کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول۔ پیار سے بولنے یا حسن یا حسین، بیٹھ جائیے، پیار سے بولے یا حسن یا حسین، حسین یہاں بولے۔ ہمارا نعرہ صرف یا حسین نہیں ہے، ہمارا نعرہ ہے یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ پیار سے بولے یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ نبی نے فرمایا میرا حسن میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار۔ آپ کے خطیب و امام علامہ ثاقب رضا صاحب قبلہ جوان ہیں، کیا حسین انہی کے سردار ہیں؟ نقیب اجلاس علامہ اعظم صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، کیا امام حسین انہی کے سردار ہیں؟ میں بول رہا ہوں الحمدللہ جوانوں کا میرے ہی سردار ہے۔ نہیں نبی فرماتے ہیں میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اگر کوئی بچپن میں انتقال کر جائے گا یا جوانی میں انتقال کرے گا یا بڑھاپے میں انتقال کرے گا، اللہ جنت میں داخل ہے، بچے کو جوان بنا دے گا، ہر بوڑھے کو جوان بنا دے گا، ہر بزرگ کو اللہ جوان بنا دے گا، سارے جوان ہوں گے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا میرا نواسا حسین سارے جنتی جوانوں کا سردار، جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، اسامہ بن زید فرماتے میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ایک چادر اوڑے ہوئے، کیا چادر اوڑے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے اللہ کے رسول نے اس طریقے سے چادر کو اوڑھا کہ کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ کچھ چادر میں ہے نہیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں جب میں نے سرکار کو کمبل اوڑھے ہوئے دیکھا تو میں سمجھ گیا کمبل میں کوئی چیز موجود ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے دیکھا کمبل میں کوئی چیز موجود ہے۔ اسامہ بن زید فرماتے جب میں اپنی ضروریات سے فارغ ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، یا رسول اللہ اپنے
कंबल को आप हटाइए, मैं देखूं आपके कंबल में है क्या। उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने जब कंबल हटाया तो मैंने देखा कंबल में हसनैन करीमैन जलवा फरमा है, हसन हुसैन तशरीफ फरमा है। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने ये दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, उनसे भी मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करता है। अगर आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो समझ लीजिए अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। इमाम हुसैन की शान, अल्लामा साहब इमाम हुसैन की शान देखो, मदीना शरीफ की सरजमीन है, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी है। एक सहाबी कहते या रसूल अल्लाह एक 12 साल का दीवाना रहता है आपके शहर मदीना में, उसकी एक शिकायत करनी है। नबी फरमाते बोलो शिकायत क्या करनी है। वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह वो 12 साल का दीवाना है, आपके बेटे हुसैन की उम्र 6 साल की है, आपका बेटा हुसैन जिस रास्ते से निकलता है जहाँ पर हुसैन के कदम का निशान बन जाता है, उस निशान के मिट्टी को उठा करके वो 12 साल का दीवाना अपने सर में डालता है, अपनी आंखों में लगाता है। या रसूल अल्लाह शिकायत यही है। अल्लाह के रसूल ने मुलाहिजा फरमाया, इरशाद फरमाते फिर से कहो क्या कह रहे हो। वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह एक 12 साल का बच्चा है जो इमाम हुसैन जहाँ पर चलते हैं उनके कदम का निशान जहाँ पे बन जाता है उस जगह की मिट्टी को वो 12 साल का बच्चा उठा के अपनी आंखों में सुरमे की जगह लगा लेता है, अपने सर में डाल लेता है। या रसूल अल्लाह यही शिकायत है। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी जाओ उसे बुला करके लाओ। वो सहाबी बुलाने जाते हैं, 12 साल का दीवाना खाना खा रहा है। वो सहाबी कहते हैं ऐ दीवाने सुन, तुझे अल्लाह के पैगंबर ने बुलाया है। दीवाना खाना खा रहा था, खाना खा रहा था, खाना छोड़ दिया, फौरन दौड़ते हुए चलने लगता है, दौड़ता हुआ जा रहा है। वो सहाबी कहते मुजरिम होकर के इतनी जोर से तू भाग रहा है, तू तो मुजरिम है, फिर भी सरकार की बारगाह में जोर से भाग रहा है। 12 साल का दीवाना कहता है मैं भाग इसलिए रहा हूँ, मुझे बुलाया किस बारगाह में जा रहा है, बुलाने वाला मुझे कौन है, किसकी बारगाह में मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं जोर से भाग रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सहाबा के माबान बैठे हुए हैं, 12 साल का दीवाना पहुँचता है। नबी फरमाते 12 साल के बच्चे ये बताओ मुझे तुम्हारी एक शिकायत मिली है। कहा या रसूल अल्लाह कौन सी शिकायत है। नबी फरमाते हैं ऐ 12 साल के दीवाने बात ये है, मैंने सुना है मेरा नवासा हुसैन जहाँ पर कदम रखता है तो वो जगह की मिट्टी को उठा करके अपने सर में डालते हो, अपनी आंखों में लगा लेते हो, अपने कपड़ों पे मल लेते हो, क्या ये बात सही है। वो 12 साल का दीवाना कहता या रसूल अल्लाह हाँ ये बात सही है। आका हुसैन भी बैठे हुए हैं। नबी ने फरमाया हकीकत में ऐसा करते हो। 12 साल का दीवाना कहता हाँ आका मैं ऐसा करता हूँ। नबी ने फरमाया तुम्हारा नाम क्या है। कहा मेरा नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है। कहा तुम ऐसा क्यों करते हो। वो 12 साल का दीवाना कहता है या रसूल अल्लाह सारा मदीना आपके नवासे हुसैन से प्यार करता है, लेकिन मैं आपके नवासे हुसैन से इश्क करता हूँ। सारा मदीना प्यार करता है, मैं आपके नवासे हुसैन से इश्क करता हूँ। इतना कहना था, 12 साल का बच्चा जुमला कहता है। अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, फौरन खड़े हो जाते हैं, ये अपने हाथों को फैलाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ हबीब इब्ने मुजाहिर आजा मेरे सीने से लगता। 12 साल का दीवाना करीब जाता है, अल्लाह के रसूल के सीने से लग जाता है। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा। 12 साल का दीवाना उसका हाथ पकड़ते हैं, दोनों का हाथ पकड़ करके एक दूसरे के हाथ में मिलाया। मिलाने के बाद कहते हैं या अल्लाह मैंने इन दोनों के हाथों को मिला दिया है, आखिरी दम तक मौला तू इन दोनों को जुदा ना हो जाए। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई या अल्लाह मैंने इन दोनों के हाथों को मिला दिया है, आखिरी दम तक तो इन दोनों को जुदा ना होने देना। सुभान अल्लाह। हबीब इब्ने मुजाहिर है। सुभान अल्लाह। आका हुसैन की शान तो देखो। कहाँ जा रहे बाबू, आ जाओ। हुसैन की महफिल में बैठो, प्यास लग रही है। साथ और बुलहान को आका हुसैन पर पानी बंद किया गया। हुसैन की महफिल में 1 घंटा नहीं बैठ सकते हो तो सोचिए आका हुसैन 3 दिन कैसे प्यासे रहे होंगे। 2 घंटे की प्यास तुम्हें बर्दाश्त नहीं। आका हुसैन को सोच लीजिए 3 दिन के भूखे थे, प्यासे थे, पूरे कुंबे पर पानी बंद कर दिया गया था। यही आका हुसैन है, आका हसन है।
25 पैदल हज किए। कितने? 25 पैदल हज किए। आज अगर एक कोई हज कर लेता है और जब वो हज से वापसी करे, अगर कोई उसका नाम लेके पुकार लेना तो गुस्सा हो जाता है कि मैं हज करके आया हूं, तूने मेरा नाम ले लिया, मुझे हाजी क्यों नहीं कह रहा, हाजी साहब कहना चाहिए। इमाम हुसैन ने एक दो नहीं 25 पैदल हज किए। अंदाजा लगाइए, पैदल 25 हज किए हैं आका हसन और आका हुसैन ने। एक मर्तबा हज के लिए तशरीफ लिए जा रहे हैं, रास्ते में एक मुसाफिर से मुलाकात हुई। मुसाफिर ने कहा आका हुसैन कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है, कुछ अता कर दीजिए। आका हुसैन से इतना कहा, आका हुसैन ने अपने भाई हसन से पूछा ये मुसाफिर हमसे ज्यादा राह मांग रहा है। आका हसन ने फरमाया दे दिया जाए। आका हसन ने सारा खाना जो भी था ज्यादा राह, सारा सामान उठा करके मुसाफिर को दे दिया। जब चलने लगते हैं आका हुसैन ने पूछा भाई हसन सारा सामान रास्ते का हमने उसे दे दिया है, अगर हमें भूख लगेगी हम क्या खाएंगे, हमें प्यास लगेगी हम क्या खाएंगे। तो आका हसन ने फरमाया भाई हुसैन जिस खुदा ने इस मुसाफिर के लिए हमारे जरिए से खाने का इंतजाम कर दिया है, वो रब हमारे खाने का भी इंतजाम कर देगा, हमारे पीने का भी इंतजाम इंतजाम फरमा देगा। इतना कहना था। अब दोनों शहजादे चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में आका हुसैन को प्यास लगती है, प्यास लगती, पानी कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब भूख की शिद्दत महसूस हो रही है, लेकिन पानी कहीं गुर्बो जवार में नहीं है, दूर दूर तक कोई मकान भी नजर नहीं आ रहे हैं। आका हुसैन ने कहा भाई हसन कहीं मकान भी नजर नहीं आ रहे हैं। अचानक एक झोपड़ी पर नजर पड़ती है। आका हुसैन उस झोपड़ी के करीब जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, आवाज देते हैं क्या कोई झोपड़ी के अंदर है। आवाज आती हाँ एक खातून है, बोलो क्या चाहिए। आका हुसैन कहते सुनो मेरे पास रास्ते में खाने का कोई भी सामान नहीं है, भूख की शिद्दत है, क्या कुछ खाने को मिलेगा। आका हुसैन ने इतना कहा, वो खातून कहती मेरे घर पे तो कुछ नहीं है, एक प्याला दूध है क्या तुम पी सकते हो। आका हुसैन ने फरमाया लेकर के आओ पिया जाएगा। वो खातून घर पे गई, एक प्याला दूध लिया, लेने के बाद आका हुसैन के हाथ में दे दिया। आधा प्याला आका हुसैन ने दूध पिया, आधा प्याला आका हसन ने दूध पिया। पीने के बाद दोनों शहजादे जब चलने लगते हैं, वो खातून जब बच्चों को देख रही थी, उस खातून ने कहा बेटा तुम अपना पता तो बता दो, अपना नाम तो बता दो, तुम्हारी माँ का नाम क्या है, कौन सी इतनी नसीबों वाली माँ है जिसने तुम जैसे बच्चों को जन्म दिया है कि तुम्हारे चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही है, जरा अपना नाम तो बता दो, अपने घर का पता तो बता दो। आका हुसैन ने फरमाया खातून मेरा नाम पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा पता ये है जब तुझे आना हो मेरे मुस्तफा का मदीना आ जाना, हमसे वहां मुलाकात हो जाएगी। इतना कहा हसनैन करीमैन मदीना शरीफ, हसनैन करीमैन मक्का शरीफ जाते हैं। हज बैतुल्लाह से फरागत हासिल करने के बाद एक दिन आका हुसैन मदीना शरीफ की गली से निकले, क्या देखते हैं कहीं खातून जिसने एक प्याला दूध पीने के लिए दिया था। आका हुसैन ने उस खातून को पहचान लिया, पहचानने के बाद अपने घर ले जाते हैं, उस औरत की खातिर तवाज़ो करते हैं। जब वो औरत चलने लगती है, आका हुसैन ने 2000 दीनार दे दिए, 1000 बकरियां इनाम में दे दी। जब वो खातून चलने लगती है, आका हुसैन ने फरमाया खातून अभी तो सिर्फ मैंने खातिर की है, मेरा बड़ा भाई हसन तो अभी बाकी है, उसे भी खातिर करने का मौका दे दो। अब वो खातून जाती है, आका हसन ने भी खातिर तवाज़ो की, 2000 दीनार 1000 बकरियां आका हसन ने भी दे दी। अब ये खातून कहती बेटो तुमने इतना हमें साजो सामान दे दिया है, इतनी बकरियां दे दी है, हम अपनी झोपड़ी तक इतनी बकरियां लेकर के कैसे जाओगे। आका हुसैन ने फरमाया खातून परेशान ना हो, हम सारी बकरियां तेरी झोपड़ी तक पहुंचाने चलेंगे। आका हुसैन साथ में चलने लगते हैं, चंद कदम आगे बढ़ते हैं। वो खातून कहती है बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। आका हुसैन फरमाते खातून सुन ले मैंने तुझे उसी दिन पहचान लिया था जिस दिन पहली मरतबा मदीने की गली में देखा था। खातून सुन ले मैं वही हुसैन हूँ जो तेरे दरवाजे पर एक मरतबा गया था, तूने मुझे एक प्याला दूध पिलाया था, एक प्याला मैंने तेरे घर पे दूध पिया था, एक प्याला तेरे घर पे दूध पिया था। मैं वही हुसैन हूँ जिसका तूने पता पूछा था, मैंने मुस्तफा का मदीना बता दिया था। अब वो खातून कहती बेटा इसीलिए तुमने मेरी खातिर की है, 2000 दीनार दिए है, 1000 बकरियां दी है। आका हुसैन फरमाते खातून मैंने इसलिए तेरी खातिर नहीं की है कि तूने मुझे एक प्याला दूध पिलाया था। वो कहती नहीं तुम यही बदला चुका रहे हो। आका हुसैन फरमाते खातून अगर बदले की बात नहीं है तो बदला आज नहीं बल्कि मैदान महशर में चुका हुआ कि तेरा हाथ पकड़ के जन्नत
یہی آقا حسین ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ مرتبہ مسکراتے بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ مسکرانا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ یوں مسکرائے جان سے کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب گشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ ایک مرتبہ مسکرانا بھی ضروری ہے، مسکرا دیجئے، کہہ دیجئے یا حسن یا حسین۔ یہی آقا حسن ہے۔